Hello and welcome you all. Let's continue our discussion. In the first two videos, we have completed up to question number 55. So in this video, we will start from question number 56. Question number 56. A black body at temperature T emits radiation at peak wavelength lambda. If the temperature of black body become 40, the new peak wavelength is. So initially wavelength lambda and temperature T है and finally temperature becomes 4 times T. So we have to find lambda 2. देखो from Wien's displacement law we know that the product of wavelength corresponding to maximum energy and absolute temperature is constant. So from here we can write that lambda 1 T1 equal to lambda 2 T2. So T2 lambda 2 equal to lambda 1 T1, lambda 2 equal to lambda 1 T1 by T2. So lambda into T by 4 times T. So it will be equal to lambda by 4. So lambda 2 is lambda by 4. So new peak wavelength is lambda by 4 and your correct option is option D. देखो जैसे कि यहाँ हम बोल रहे हैं कि फ्रॉम वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्ब्डा टी प्रोडक्ट विथ टेम्परेचर इज कांस्टेंट. वो जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना वो भी याद रख लेना, कभी कभी आ जाता है. जैसे कि देखो कभी कभी ना ये वेवलेंथ की पीक वैल्यू गिवन रहेगा, टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो अगर कांस्टेंट याद है तो भी जाके कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे कि देखो लैम्ब्डा टी टाइम्स टी इक्वल टू 0.2989 सेंटीमीटर केल्विन और अप्रोक्सीमेटली याद रख लेना कि 0.3 सेंटीमीटर केल्विन. क्वेश्चन नंबर 57. If U, H, F and G represents internal energy, free energy, enthalpy and Gibbs free energy respectively, then which one of the following is a correct thermodynamic relation? देखो ये जो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी है ना, ये जो चारों के थर्मोडायनामिक रिलेशन एक बार याद रख लेना, क्योंकि ये सीयूसीटी में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. जैसे कि देखो हमें पता है कि डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी एंड डी एफ इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी पी. देखो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जो कि मैंने वीडियो की लास्ट में बता दूंगा, तो वीडियो की लास्ट में एक बार चेक कर लेना इसके ट्रिक. जैसे कि देखो अभी ऑप्शन ए करेक्ट है, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Question number 58. The Weidmann-Franz law related to the thermal conductivity and electrical conductivity of metal is. From Weidmann-Franz law, we know that ratio of thermal conductivity to electrical conductivity is constant at constant temperature. That is K by sigma T equal to constant, and this constant is known as Lorentz number. तो your correct option is option A, K divided by sigma T equal to constant. Question number 59. A photon of wavelength lambda is incident on a free electron at rest and is scattered in the backward direction. The fractional shift in its wavelength in terms of Compton wavelength of the electron is. From Compton scattering, we know that change in wavelength of photon is given by lambda dash minus lambda equal to h by m naught c 1 minus cos phi. Lambda dash is the wavelength of scattered photon, lambda is the wavelength of incident photon. This h by m naught c is known as Compton wavelength lambda c, and phi is the angle of scattering of for photon. And in this given question, photon is back scattered, that is phi equal to pi. So lambda dash minus lambda equal to 1 minus cos pi. Cos pi is minus 1, so 1 plus 1 that will be 2, that is
2 lambda c. So change in wavelength for photon is 2 lambda c. Now in the question it is asking to find the fractional shift. Fractional shift, and fractional shift is calculated by change in wavelength divided by original wavelength. So 2 lambda c by lambda. So your correct option is option D. Question number 60. Two spherical nuclei have mass number 216 and 64 with their radii r1 and r2 respectively. The ratio of r1 by r2 is, mass number are given. Now we have to find the ratio of r1 to r2, and we know the relation between the radius and mass number is given by r equal to r naught a to the power 1 by 3. So from here we can write r1 by r2, r naught the constant है, so r1 by r2 equal to a1 by a2 to the power 1 by 3. So 216 by 64 to the power 1 by 3, that is equal to 6 by 4, or it is equal to 3 by 2. So their correct option is option B. Question number 61. Choose the correct statement about triclinic crystal system. We have to write the relation between A, B, C and alpha, beta, gamma for triclinic system. देखो जैसे कि वो 3 डायमेंशन में 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना, 7 क्रिस्टल सिस्टम, तो सारे के जो रिलेशन है ना वो याद रख लेना, क्योंकि वो बहुत बार ये रिपीट हो जाता है क्वेश्चन. तो देखो जैसे कि फॉर ट्राइक्लिनिक सिस्टम वी नो दैट A not equal to B not equal to C, and alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 degree. So your correct option is option A. Question number 62. The susceptibility of diamagnetic material is. देखो जैसे कि हमें पता है susceptibility of diamagnetic material is negative equal to -1. तो सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. अच्छा तो देखो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ये भी याद रख लेना साथ में कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 63. द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज. देखो ये पूछ रहा है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन नैरोड और रिमेन सेम इन फॉरवर्ड बायस और इन रिवर्स बायस. देखो जैसे कि हमें पता है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बायस एंड इंक्रीजेस इन रिवर्स बायस. सो in forward bias connection of PN junction, the depletion region become narrowed. So your correct option is option A. Question number 64. When an impurity doped into an intrinsic semiconductor, the electrical conductivity of semiconductor is. देखो जैसे कि हमें पता है when an impurity doped into an intrinsic semiconductor, conductivity, electrical conductivity of the semiconductor increases. So your correct option is option B. Question number 65. In a common base amplifier, the phase difference between the input and output voltage is. In common base amplifier, the phase difference between input and output voltage is 0 for common base amplifier. ठीक है. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. जैसे कि देखो दो और है ना, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर. सो वो भी याद रख लेना. फॉर कॉमन कलेक्टर पोटेंस फेज डिफरेंस between input and output voltage is also 0. But for common emitter, the phase difference between input and output voltage is pi.
Question number 66. If f is a constant vector and r vector is the position vector, then gradient of f dot r would be. जैसे कि देखो f is constant vector, r is position vector, and we have to find gradient of f dot r. देखो f dot r क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. एंड देखो हमें क्या पता है कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज ए वेक्टर, तो आंसर पे एक वेक्टर तो आएगा ही. ठीक है, तो देखो और क्या, ये कैलकुलेट करके देखना ये क्या आएगा, ये जो कांस्टेंट वेक्टर एफ है रिजल्ट में वही आएगा कि ग्राड ऑफ कांस्टेंट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ पोजीशन वेक्टर विल गिव अस दिस सेम कांस्टेंट वेक्टर एफ. देखो एक बार कैलकुलेशन करके चेक कर ले रहे हैं. जैसे कि लेट दिस कांस्टेंट वेक्टर एफ बी इक्वल टू f1 i कैफ प्लस f2 j कैफ प्लस f3 k कैफ एंड पोजीशन वेक्टर इक्वल टू x i कैफ प्लस y j कैफ प्लस z k कैफ. सो f डॉट r वेक्टर विल गिव अस f1 x प्लस f2 y प्लस f3 z. नाउ ग्राड f dot r, so that is equal to I cap del y del x plus j cap del y del y plus k cap del y del z f1 x plus f2 y plus f3 z, and this will be equal to I cap f1 plus j cap f2 plus k cap f3, and this is equal to f vector, constant f vector. So answer is grad of f dot r is equal to f. So your correct option is option B. देखो ये तो क्वेश्चन में आता है, और एक भी आता है क्वेश्चन में, वो भी याद रख लेना. जैसे कि देखो कर्ल ऑफ constant वेक्टर f क्रॉस पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू 2f वेक्टर. तो ये याद रख लेना. क्या करना है कि एक बार कैलकुलेट कर लेना फिर याद रख लेना. ठीक है, सो कर्ल ऑफ f क्रॉस r इक्वल टू 2f क्रॉस. क्वेश्चन नंबर 67. फॉर वेक्टर्स a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर द वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस c इज. देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 67, ये देखना CUCT 2020 क्वेश्चन में आया हुआ है. तो ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है. ठीक है ना, तो तुम एग्जाम जाने पहले सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस. देखो सारे जो प्रीवियस ईयर की ना वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो तुम एक बार वो चेक कर लेना. और देखना हम ये जो वीडियो है ना उसमें सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि तुम्हें एग्जाम में हेल्प करेगा. ठीक है, जैसे कि देखो एक प्रीवियस ईयर में जैसे कि 2020 में हमने 75 क्वेश्चन सॉल्व करे, लेकिन देखना वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ ना तुम्हारा 150 के आसपास क्वेश्चन कवर हो रहा है. ठीक है, तो सारे वीडियो अच्छे से चेक कर लेना एक बार. तो देखो जैसे कि a क्रॉस b क्रॉस c कैलकुलेट करना है. हमें क्या पता है कि ये b a डॉट c माइनस c a डॉट b. जैसे कि देखो इसे बैक माइनस के कहते हैं नहीं, तो देखो ये a डॉट c कैलकुलेट कर लो, a डॉट b कैलकुलेट कर लो. जैसे कि देखो b वेक्टर a डॉट c 1 माइनस 1 माइनस c वेक्टर a डॉट b क्या हो जाएगा 3 माइनस 5. तो देखो ये तो जीरो हो गया, ये माइनस c वेक्टर माइनस 2 that is equal to 2c vector. So a cross b cross c is in the same direction as c vector. So your correct option is option A. देखना वो जो 2020 क्वेश्चन है ना, इसके साथ हमने 2-3 कॉन्सेप्ट और बताए हुए हैं, तो वो एक बार जरूर चेक कर लेना. क्वेश्चन नंबर 68. The trace of a 2 cross 2 matrix is 4 and its determinant is 8. If one of the eigenvalues is 2 into 1 plus I, the other eigenvalue is. देखो 2 cross 2 matrix given है, and we know for a 2 cross 2 matrix there will be 2 eigenvalues. Let one be lambda 1 and other be lambda 2. देखो जैसे कि given है trace of matrix equals to 4, और हमें क्या पता है कि ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स एगेन वैल्यूज, दैट इज 4 इक्वल्स टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2. एंड देखो और क्या गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 8, डिटर्मिनेंट इज 8, एंड हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स एगेन वैल्यूज गिव डिटर्मिनेंट. सो 8 इक्वल टू लैम्बडा इंटू लैम्बडा 2.
और देखो और एक एगेन वैल्यूज भी गिवन है, लेट लैम्बडा 1 बी इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस आई। नाउ वी हैव टू फाइंड लैम्बडा 2। तो देखो जैसे कि है ना, सारे ऑप्शन के साथ एक बार चेक कर लो। जैसे कि ये 2 इंटू 1 प्लस आई गिवन है, तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे ताकि जो उसके साथ ऐड करेंगे तो अभी हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। नहीं तो ऐसे भी चेक कर लो कि उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमें 8 मिलेगा। देखो एक बार ऑप्शन ए को चेक करो। जैसे कि हम ले रहे हैं कि लैम्बडा 2 इक्वल टू 2 1 माइनस आई। तो देखो अभी ये दोनों को ऐड करो, क्या मिल रहा है हमें कि लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 इक्वल टू 4। और जैसे कि अभी मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिला है, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 इक्वल टू 8। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो मेन कॉन्सेप्ट इज, याद रखना ये कि सम ऑफ एगेन वैल्यूज गिव्स द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एगेन वैल्यूज गिव्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। द ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz gives, तो देखो ये इंटीग्रल क्या देगा, dx dy dz, इट विल गिव अस वॉल्यूम of region T. Okay, so your correct option is option A. Question number 17. The solution of the differential equation x to the power 4 dy by dx plus x to the power 3 y equal to minus sec xy would be। देखो जैसे कि ये इक्वेशन गिवन है, तो क्या करो कि अभी एक्स क्यू को सारे टर्म में डिवाइड कर लो। जैसे क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस सेक ऑफ एक्स वाई बाई एक्स क्यू। अभी देखो ये जो पूरा टर्म है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस सेक ऑफ एक्स वाई बाई एक्स क्यू। अभी देखो डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सेक ऑफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स क्यू डी एक्स। फिर अभी ये क्या लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स। नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो कॉस xy dxy minus x to the power minus 3 dx. Now integration of cos is sin of xy equal to minus x to the power minus 2 divided by minus 2 or plus c. So sin xy equal to 1 by 2x square plus c. So your correct option is option A. In this video we have completed 15 questions, so we will continue in the next video. देखो जैसे कि अभी बोल रहे हैं कि 67 क्वेश्चन की ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद रखना है वो, ठीक है। जैसे कि टू फाइंड द थर्मोडायनेमिक रिलेशन। देखो जैसे कि मैं क्या ट्रिक यूज करता हूँ कि statistical physics and thermodynamics validates under following guidelines and useful hints। तो देखो बस ये फिगर अच्छे से याद रखना है। जैसे कि क्या करें हम कि statistical physics and thermodynamics validates under following guidelines and useful hints। तो बस ऐसे वो फिगर को याद रखना है। जैसे कि अभी देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो इंटरनल एनर्जी यू है इसके लिए रिलेशन लिखना है। जैसे कि देखो अच्छा ये याद रखना, ये जब भी एस और पी सेपरेट ले आएंगे उसके साथ एक माइनस साइन आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो अभी यू के साथ एस और बी है ना, जैसे कि हमें डी यू के लिए रिलेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कि डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। जैसे कि S और P सेपरेट ले आएंगे, जैसे कि देखो यहाँ P सेपरेट ले आ रहा था तो माइनस साइन आ गया। ऐसे देखो जैसे कि हमें F के लिए लिखना है, तो F के साथ देखो V और T है ना, तो कैसे लिखेंगे कि डी एफ इक्वल टू माइनस
एस डी टी माइनस पी डी वी। सिमिलरली फॉर जी, देखो जी के साथ पी और टी है, तो डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। एंड फॉर एच, डी एच, देखो एच के साथ एस और पी है, तो डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। ओके, तो ऐसे करके याद रख लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।